Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. In today's video, I will talk about with you what is dialogue writing. First, we will discuss definition and characteristics of a good dialogue. Dialogue is a conversation between two or more persons. Dialogue writing is a useful form of composition since it enables a student to express his views in a natural and colloquial manner. मुकालमा निगारी का मतलब दो या दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान गुफ्तगू है। मुकालमा निगारी बहुत ही दिलचस्प फ़न है इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इससे तालिब इल्म को फितरी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान में अपने ख़यालात के इजहार में मदद मिलती है। Dialogue writing is a lively art. One should write as one speaks. When one speaks with a friend or an acquaintance, one does not speak in a polished or sophisticated style. There should be life in one's speech. डायलॉग राइटिंग के अंदर आप इस तरह के लहजे को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें बनावटीपन आए, बल्कि आपको इस तरीके से लिखना है जिस तरह आप आम रोजमर्रा जिंदगी में किसी से भी बात करते हैं। Now we will discuss qualities of a good dialogue. A good dialogue has the following qualities. The first one is conversational language. A good dialogue must have natural and conversational language. The students should not use learned words, strange idioms, or long quotations in a dialogue. अच्छे डायलॉग के अंदर आप हमेशा रोज़मर्रा बोलने वाली इंग्लिश यूज़ करेंगे। मुकालमे में फ़िक्रे हमेशा छोटे छोटे लिखने चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू में बहुत कम लोग लंबे फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं। आपके जो मुकालमे में सेंटेंसेस हैं वो बेसाख्ता होने चाहिए और बनावटीपन से आपको परहेज़ करना चाहिए। Number 2 is liveliness. A good dialogue must be lively and forceful. In order to make a dialogue forceful and lively, we must take care of these things. We must introduce digression and side issues in our dialogue, and there should be plenty of interruptions and jerks. One should not always finish one sentence before another begin. एक अच्छे डायलॉग के मुकालमे पुरअसर और पुरकशिश होने चाहिए। मुकालमों को पुरअसर और पुरतासीर बनाने के लिए मुकालमों की यकसुई ख़त्म करके इनमें ज़िमनी मौज़ूआत को आप शामिल करें, लेकिन ये जो जुमले आप शामिल करेंगे इनका ताल्लुक मौजू से तो होना चाहिए, लेकिन वो बराह रास्त इसके मुतल्लिक ना हो। इस तरह डायलॉग की यकसानियत ख़त्म हो जाएगी। Number 3 is the gesture and movement of the speaker must be indicated. When a man talks, he does not talk with his tongue only. His whole body talks. He makes easy, explanatory, uneasy gestures. He walks with his feet. He nods his head and makes movement with his hands. एक अच्छे डायलॉग में बोलने वाले की हरकतों सकनात को ज़रूर दर्ज करें। जब कोई शख्स बात करता है तो उसकी आंखें, उसके हाथ और उसके जिस्म के बाकी अज़ा इस बातचीत में हिस्सा ले रहे होते हैं। वो बातचीत करते वक्त सर हिलाता है, उसकी आंखों में गुस्सा, गम और परेशानी का इजहार होता है। बाज़ औक़ात वो बेचैनी के आलम में घूमता फिरता है और बातचीत में हिस्सा लेता है। Number 4 is the tone of the various speakers should be indicated if possible. This will add realism and liveliness to the dialogue. In written speech, we cannot hear the speaker, so the tone of their voices should be indicated so that we may understand the spirit of the dialogue more clearly. डायलॉग में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ किरदारों के लबो लहजे का इजहार अगर मुमकिन हो तो कर देना चाहिए। लबो लहजों के इजहार से गुफ्तगू में ताजगी और शगुफ्ती भी पैदा होती है। तहरीरी ज़ुबान को पढ़ते वक्त हमें बोलने वाले के चेहरे के तासुरात को तो इल्म होता ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उनके तासुरात को भी कलम बंद करें।
ताकि बोलने वाले के फिक्रों से हमें पता चले कि वो गुस्से में बोल रहा है, वो खुश है, वो गमज़दा है। Number 5 is dramatic interest. One should make one's dialogue dramatic, and this can be done by adding a good deal of human interest to it. In other words, the characteristics, mannerism, or peculiarities of every speaker be hinted at. The language spoken by a farmer and a laborer must be different from that of a scholar and a doctor. The dialogues spoken by them must reveal the characters or personality of the speaker. एक अच्छे मुकालमे के अंदर ड्रामाई अंसर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मुकालमों की अदायगी से हमें पता चलता है कि बोलने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, किस किस्म के लोग डायलॉग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक प्रोफेसर और एक सब्जी फरोश है तो दोनों की गुफ्तगू में फ़र्क होना चाहिए। How to write a good dialogue? There are two kinds of dialogue. Number 1, dialogue dealing with controversial subject. Number 2, dialogue dealing with interest and shared interest. Before writing any type of dialogue, the following things must be noted down. Number 1, think little over subject. If it is controversial subject, you should focus on the pros and cons of the subject. One speaker should represent one point of view and the other speaker should oppose him. Arrange the pros and cons carefully. If you are dealing with an interesting subject, then you should focus all the points ऑफ दैट टॉपिक। डायलॉग लिखने से पहले मौजू पर आप अच्छी तरीके से सोच लें। अगर आपका डायलॉग मतनाज़ा या काबिल बहस मौजू से ताल्लुक़ रखता है तो इसकी हिमायत और मुखालफत में किए जाने वाले तमाम पॉइंट्स को अलग-अलग लिख लें। डायलॉग में एक कैरेक्टर जो है वो हिमायत में बात करेगा और दूसरा मुखालफत में। मुखालिफ और हक में दिए जाने वाले तमाम दलाइल को अच्छी तरह सोच समझ कर लिखें। अगर डायलॉग में कोई मुत्तफ़िका मौजू ज़ेर बहस हो तो उससे तमाम मुतल्लिका पॉइंट्स जो हैं वो भी आप पेपर पे लिख लें और इन दोनों पॉइंट्स को आप बोलने वालों पर बराबरी में तकसीम कर दें। Number 2, think out the character of each of your speakers. The character of your dialogue should not act like talking machines. Each man should be given some mannerism or peculiarities. To do this, you must have in your mind a clear idea of the way in which each character is to express his views. For instance, a scholar, a poet, or a professor will definitely speak in a different way from a servant and a laborer. डायलॉग लिखते वक्त डायलॉग के किरदारों की शख्सियत का इजहार उनके बोले हुए जुमलों से करें। एक प्रोफेसर, आलिम या शायर की गुफ्तगू एक मजदूर या एक नौकर से बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। Number 3, do not make a dialogue the monopoly of one speaker. डायलॉग में एक किरदार को दूसरे किरदार पर फोकियत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दोनों किरदारों को बोलने के लिए मुनासिब वक्त दें। Number 4, let one speaker sometime interrupt the other in real conversation. One person sometimes interrupts the other or breaks in or what he is saying. Of such interruptions are sparingly used. They add to its naturalness. आम गुफ्तगू में एक शख्स बाज़ औक़ात दूसरे शख्स की गुफ्तगू को काट देता है। इसी तरह आपने डायलॉग में भी करना है कि इस तरह से आपके डायलॉग में जो है ब्यूटी और बेसाख्तगीपन जो है ना वो पैदा होगा। Number 5, use exclamatory words in your dialogue for surprise, pleasure, anger or irritation, request and sorrow. You can use different words. For example, well,
really, well done, splendid, how nice, good, wonderful, my God, प्लीज। इन सब वर्ड्स को आप इस्तेमाल करके अपने मुकालमे को और दिलचस्प बना सकते हैं। नंबर 6, begin your dialogue in an interesting way so that the reader's attention may be caught from the start. The conversation should lead to some definite conclusion. It should not end abruptly. डायलॉग को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में शुरू करें ताकि शुरू से ही वो पढ़ने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो करे। डायलॉग को एकदम ख़त्म मत करें बल्कि गुफ्तगू को किसी मंतकी अंजाम पर ले जाकर ख़त्म करें। Now I will discuss with you an example of dialogue so you will better understand how to write it. The question is, write an imaginary dialogue between two friends, one of whom is about to leave England for further studies. We should introduce those things only which two friends, one of whom is about to leave for England, are likely to discuss. One will certainly wish the other safe journey and success. We should introduce movements and gestures and indicate tones. इस डायलॉग में एक दोस्त लंदन आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है और दूसरा उसे उसके घर जाके मुबारकबाद देगा। हमें मुबारकबाद देने वाले जुमले यहाँ पे लिखने होंगे और इसके अलावा उसके महफूज सफ़र के लिए अच्छे जज्बात का इजहार करना होगा। दोनों दोस्त अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, वो हायर स्टडीज़ के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और वो एक दूसरे के साथ आपस में राब्ता रखने के लिए भी प्रॉमिस करेंगे। अशरफ, हेलो हामिद, सो ग्लैड टू सी यू। अशरफ, हेलो हामिद, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हामिद, सिटिंग, आई जस्ट ड्रॉप्ड इन टू विश यू अ गुड जर्नी टू लंदन। आर यू लीविंग फॉर लंदन टुमारो? हामिद, बैठते हुए, मैं तुम्हें लंदन जाने पर मिलने के लिए आया हूँ। क्या तुम कल लंदन जा रहे हो? अशरफ, नो, आई शैल लीव फॉर लंदन आफ्टर अ फ्यू डेज। अशरफ, नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद लंदन जाऊंगा। सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज फॉर एयर ट्रैवल आर येट टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। हामिद, दैट्स ऑल राइट, बट what have you decided after all? Would you do PhD in English at London or take up some higher courses in business management? Looking around, what a comfortable room you have. हामिद, ठीक है, लेकिन तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम इंग्लिश में PhD करोगे या फिर तुम बिजनेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स करोगे? इधर उधर देखते हुए, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। अशरफ, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन ऑफ माई रूम। अशरफ, मेरे कमरे की तारीफ करने का शुक्रिया। ये लाइनें हमने इसलिए ऐड की हैं ताकि जो है नेचुरल वे में कन्वर्सेशन लगे। फादर वॉन्ट्स मी टू ट्राई फॉर PhD इन इंग्लिश बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन MBA। फादर चाहते हैं कि मैं PhD करूं इंग्लिश में, लेकिन मैं MBA करने में इंटरेस्टेड हूं। Hamid, oh well, you cannot disagree that PhD in English will give you better chances of employment. Hamid, oh well, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंग्लिश में PhD करके तुम्हें एम्प्लॉयमेंट के अच्छे मौके मिलेंगे। अशरफ, you are correct in your views. अशरफ, तुम ठीक कह रहे हो। I shall try to do both courses. I am not interested to come back to the country soon. मैं ये दोनों कोर्सेज करना चाहूँगा और मैं मुल्क जल्दी वापस नहीं आना चाहता। Father wants to see me as qualified a man as possible. हामिद, that is a good idea. हामिद, ये एक अच्छा ख्याल है। If you do the courses, you are sure to get an honorable job. अगर तुम ये दोनों कोर्सेज करोगे तो जल्द ही एक अच्छी नौकरी हासिल कर लोगे। अशरफ, आई थिंक सो टू। अशरफ, मेरा भी यही ख्याल है।
हामिद, I hope you will see all the important places of London. हामिद, मुझे उम्मीद है कि तुम लंदन की सारी अहम जगह देखोगे. Stay connected and let me know about the beautiful sights of the city. मेरे साथ जुड़े रहना और मुझे शहर की मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों के बारे में बताना. अशरफ, yes of course, I shall have enough time and opportunity to see the beautiful and historical places of London. अशरफ, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास काफ़ी टाइम होगा और मैं खूबसूरत और तारीखी मकामात लंदन के देखूंगा. I shall try to share my experience of visiting those places with you. हामिद, लकी मैन. हामिद, तुम खुशकिस्मत हो. आई विश आई हैड योर मीन्स टू गो अबाउट एज आई लाइक्ड. मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह जा सकता. यू मस्ट बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड. तुम बहुत ही पुरजोश महसूस कर रहे होगे. अशरफ, ऑफ कोर्स. अशरफ, हाँ वाकई. आई एम वेरी एक्साइटेड दीज डेज. मैं इन दिनों बहुत ही पुरजोश हूँ. बट समटाइम्स, लेकिन बाज औकात, आई बिकम अ लिटल सैड ऑन द पुअर हेल्थ ऑफ माई मदर. लेकिन अपनी वालदा की खराब सेहत की वजह से मैं उदास हो जाता हूँ. शी इज़ नॉट पर्टिकुलरली वेल दीज डेज. वो आजकल ठीक नहीं है. इट इज़ वेरी पेनफुल टू लीव हर इन दैट कंडीशन. ये बहुत ही दुख की बात है कि मैं उन्हें इस हालत में छोड़ के जाऊं. हामिद, ओ नो, यू शुड नॉट वरी अबाउट हर हेल्थ. हामिद, नहीं, तुम्हें उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए. शी वुड रिकवर सून बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. वो जल्द ही अल्लाह की हुक्म से सेहतयाब हो जाएंगी. यू शुड नॉट फील वरीड अबाउट हर. यू कैन विजिट योर हाउस ड्यूरिंग एवरी वेकेशन. तुम छुट्टियों में उनसे मिलने घर आ सकते हो. अशरफ, श्योरली. अशरफ, यकीनन. आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू माई हाउस ड्यूरिंग वेकेशन. मैंने भी यही फैसला किया है कि वेकेशन में घर जरूर आऊंगा. हामिद, आई शुड नॉट टेक योर टाइम एनी मोर. अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. यू मस्ट बी बिजी पैकिंग थिंग्स नाउ. तुम अपनी पैकिंग में मसरूफ होगे. वेल, I wish you the best of luck. Goodbye. Ashraf, thank you. Goodbye. They shake hands. अब इस डायलॉग की एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्वालिटीज़ हमने एक अच्छे डायलॉग की बताई थी वो सब क्वालिटीज़ हमने इस्तेमाल करके एक अच्छा डायलॉग लिखा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.